Hello everyone. So civil services exam की preparation happens in two different phases. One is the phase which is from January to May, which is the भसड़ वाला phase जहाँ पे मतलब stress होता है, जहाँ पे pressure होता है. Why? Because the notification is out and the race to the exam is on. The second phase is the low pressure phase, which is the one that we are in right now. Right, the August to December phase. And the idea here is कि अगर ये 4-5 महीने आप ढंग से इस्तेमाल कर लेते हो so you feel less stressed in that January to May wala phase, and obviously you are much more prepared. So how exactly do we go about spending these 4-5 months is what we are going to talk about in today's video. So let's get started. Now number one, let's try and understand this with two different aspirants. एक aspirant है जिसने भाई कि भाई अभी भी टाइम है कर लेंगे एंड धीरे धीरे फिर कुछ करते हैं एंड सिंस देयर इज नो कंसिस्टेंसी देयर इज नो रेगुलरिटी. So what happens is every 2-3 months they are restarting from scratch. Why? Because you don't remember anything that you had read before. And I know that a lot of people feel that they are in this camp. And यहाँ पे problem क्या होती है कि फिर then you start in January and the questions that I start getting in the month of January are कि is it still possible to clear it if I start seriously from right now? I don't get why that is the case always. There are a lot of people who are in this camp. On the other hand, the people who are actually clearing the exam are in this camp. Right? ये जो लोग हैं यहाँ पे they are building a foundation right now. किस चीज का foundation? They are making their GS का notes, they are making their optional का notes, they are practicing answer writing before prelims so that once you clear it, you have a chance to clear mains also. These are the people who when they start preparing for prelims in January feel confident कि भाई हाँ अगले 4-5 महीने में I can put in serious effort because the background work has already been done. And that makes a lot of difference क्योंकि this is 5+ months of preparation that we're talking about and I'm sure I don't need to stress it enough to any one of you. 5 महीने अगर ये निकल जाते हैं तो then फिर उसके बाद खुद से मोटिवेशन नहीं आता है, खुद से डर लगता रहता है कि प्रीलिम्स हो भी जाएगा तो फिर क्या करेंगे? And that is not the best way to prepare for this exam. In this exam, there are plenty of things to stress you out any which way. Don't add more to that. Right? So anybody who stays consistent from July to December has a lot of momentum carrying into your prelims wala phase, and that momentum is very very important. Now इसमें करना क्या है हमें? Foundation. This phase is just then for intensifying what you're already doing and more practice for MCQs, PYQs towards prelims. But foundation यहाँ पे build होगी. तो foundation कैसे build करनी है और क्या-क्या चीजें इसमें करनी है हमें? Now, number one, obviously GS mains के जो subjects हैं आपके. Now this is apart from the prelim specific subjects. Like for example, GS1 में you get Indian society. Indian society is not something that you get a lot of questions in prelims. Similarly, GS2 में if we talk about social justice, not a lot of questions in prelims. If I talk about GS3, internal security, disaster management, agriculture से एक दो question आ जाते हैं prelims में, but that's about it. All of these subjects need to be prepared from scratch, including ethics. तो इन चीजों को मुझे अब टाइम देना है. नंबर 2, आई शुड राइट सम एसेज. अगले 5 महीने में कम से कम 5 एसे तो आपको लिखने की कोशिश करनी चाहिए. इफ नॉट दैट, यू नो यू कैन राइट 10 ऑल्सो. कि भाई हर महीने में आप 2 एसे लिख रहे हो, दैट इज नॉट अ वेरी बिग आस्क. एवरी ऑल्टरनेट संडे आई एम आस्किंग यू टू राइट 1 एसे. 1.5 घंटे का काम है. But if you have practiced these 5 to 10 essays, you have a head start on a lot of people because most people are writing their first essay post prelims and then they come to me कि सर मतलब ये essay लिखा है इसमें बताओ क्या दिक्कत है. And like there is so much that needs work in an essay also. If you don't practice it, there is no sense कि भैया last moment में 2 महीने में जाके, because already वहां पे बहुत stress है. अंत में you have to realize that with this exam what you have to understand is you have to preempt the stress. What is the idea? I will be very stressed in the month of May जब prelims होगा. I will be very stressed in the month of August जब mains होगा. उधर का कुछ stress क्या मैं अभी ले सकता हूँ? How do I do that? By practicing these things, by making my notes. इनके अलावा आपको optional के अपने दोनों पेपर करने हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, करंट अफेयर्स की थोड़ी आदत बनानी है. And towards the end of this period, we will also do a baseline test of CSAT, right? Because CSAT may a lot of people I've seen are good candidates who have a strong hold of all of these things, but then CSAT में fail हो रहे हैं.
अगर आप अपनी तैयारी के बारे में सीरियस हो तो यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड इट कैन नॉट बी लाइक कि नहीं सी सेट किसी और का काम है, आपका ही काम है। इस पे भी क्या काम करना है, विल टॉक अबाउट इट नाउ। Since most people who are going into this phase for the first time have not done ethics at all, this is where I would suggest that you start your preparation. Ethics से आप शुरू करते हो तो number one, it gives you a different subject to approach. It is a subject, if you can get the basics of it, it's a very scoring subject also. And क्योंकि अब ये different हो जाता है बाकी सारी चीजों से, थोड़ा एक relief भी मिलता है। Then GS3, why? Because this has the most new subjects for you. इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, राइट। ये सारे सब्जेक्ट्स। GS2 में गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, GS1 में इंडियन सोसाइटी। तो वी हैव अरेंज देम जस्ट इन ऑर्डर ऑफ मोस्ट न्यू सब्जेक्ट्स टू लीस्ट न्यू सब्जेक्ट्स। दूसरी चीज है यहाँ पे रहेगी कि लेट्स से मैं GS1 सोसाइटी आई एम डूइंग इन द मंथ ऑफ डिसंबर, राइट। सोसाइटी के अलावा GS1 में क्या दो सब्जेक्ट्स है बाकी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। दोज आर एनी विच वे सब्जेक्ट्स दैट आर यूजफुल फॉर मी फॉर प्रीलिम्स आल्सो। तो इफ आई वांट टू डू सम वर्क फॉर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आल्सो, आप करो उसको वहां पे, राइट। इसमें अब इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर इग्नोरिंग कि भाई पॉलिटी GS2 में करना ही नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, दिस इज द ऑर्डर फॉर द सब्जेक्ट्स दैट मोस्ट पीपल हैव नॉट डन एट ऑल इफ यू जस्ट गिवन प्रीलिम्स। बट if you want to give a serious attempt, you should also spend some time doing your polity here, Indian economy here, geography and history over there. उनको वहां पे इसलिए रखा है क्योंकि वो थोड़े रट्टे वाले अपने सब्जेक्ट हो जाते हैं कभी कभार। लाइक ज्योग्राफी में मैप्स में काफी रट्टा मारना पड़ता है। सिमिलरली हिस्ट्री में देयर आर थिंग्स दैट यू नीड टू मेमोराइज। once you have done them in December, so then I can review them in March and then I can review them again 2 weeks before the exam, right? तो मेरा भी एक सिस्टम रिदम बना रहता है। now कीप इन माइंड कि GS3 जैसे पेपर है, GS3 इज योर वाइडेस्ट पेपर ऑफ द लॉट, राइट। GS1 थ्री सब्जेक्ट्स, वेरी क्लियर। GS3 हैज 4-5 सब्जेक्ट्स, राइट। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इसके अलावा एनवायरमेंट, इसके अलावा साइंस एंड टेक, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी। तो all of these things come into this subject, so therefore the breadth of time that you have to spend over here, the breadth of subjects that you have to cover over here means आपको time management इस subject के लिए अच्छे से करना पड़ेगा। तो this is why second subject this is कि भाई अगस्त से सितंबर में अगर कर लिया तो let's say the entire month of September I'm doing just GS3। तो इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर कहां से करना है, कैसे करना है। इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग कि भैया सोर्स नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो यू कैन चेक आउट द मेंस एक्सेल कोर्स व्हिच इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स फ्रॉम upscprep.com। एंड उस कोर्स में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, राइट। देयर विल बी टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। वन विल बी द डिटेल्ड इन डेप्थ मटेरियल फॉर समबडी हु इज रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड वी हैव आल्सो क्रिएटेड वन पेजर नोट्स। वो वन पेजर नोट्स फाइनल जब आपके नोट्स आप तैयार कर रहे होते हो उस टाइम पे काम आएंगे। इफ यू स्टार्ट विद दोस वन पेजर नोट्स थिंकिंग कि भैया यार ये पूरा 100 पेज का इंटरनल सिक्योरिटी कौन पढ़ेगा, यू विल नॉट मेक सेंस ऑफ कि भैया वहां पे नक्सलिज्म का 2 पेज पे खत्म कर दिया उन्होंने, राइट। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द डिटेल्ड नोट्स इन मेंस एक्सेल, राइट। दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव फ्रॉम अस, जहां पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। सितंबर में अगर मैं ये कर रहा हूं तो आई वांट टू ट्राई एंड ऑर्गेनाइज दिस इन टर्म्स ऑफ वीक्स, राइट। एक वीक में सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी करूंगा, एक वीक डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सो ऑन। दैट इज अ कोर आइडिया दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। सिमिलरली यू नीड टू डू GS2। अब यहां पे आपका पॉलिटी एंड IR ये दो सब्जेक्ट्स और आते हैं, बट बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर समवेयर और द अदर प्रीलिम्स में भी है। IR इज दैट वन सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में इतना नहीं आता है, और जितना आता है उससे बहुत ज्यादा मेंस में आता है। सो देयरफॉर यहाँ पे इसका भी टाइम मुझे ढंग से लगाना है। तो 5 मंथ्स जो है मेरे, यू कैन ब्रीफली ब्रेक इट डाउन इनटू अ सिंपल आइडिया। अगस्त आधा से ज्यादा मेरा जा चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड लेट्स से मिड जैन। I want to assign one subject to each place. GS3, let's say GS4, GS2, यहाँ पे मैंने कर दिया GS1। इस पूरे सब महीने को मैंने दे दिया ऑप्शनल, कि ऑप्शनल को भी मुझे एक्सेसिव टाइम देना पड़ेगा कभी ना कभी। रेस्ट ऑफ द टाइम आई एम ऑब्वियसली गिविंग 3-4 hours टू ऑप्शनल ऑन एनी गिवन डे।
3-4 घंटे मैं जीएस कर रहा हूँ, 3-4 घंटे मैं ऑप्शनल कर रहा हूँ, 1 महीना मेरा पूरा का पूरा ऑप्शनल में जाएगा। यू कैन फ्लिप दीज टू डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर कंफर्ट, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल को कायदे से इसके बाद यू शुड नॉट पुल ऑप्शनल एनी फर्दर, right? So that's why ending with a GS1 subject is easier, or any GS subject for that matter, GS 1, 2, 3 में से, because then if this spills over, you can switch to the other prelims relevant subjects. कि भाई हिस्ट्री अगर मैं मेंस के लिए कर रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि भाई प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ तो होगा ही ना. So then it allows me some leeway over here, right? Next, essay. प्लीज बिल्ड अ हैबिट. महीने में एक एसे लिख लो. एक एसे लिखना इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, बट एक एसे भी आपने लिखा ना, यू विल बी अहेड ऑफ 50% ऑफ द पीपल हु डोंट इवन राइट एट ऑल. आपने अगर 5 एसे लिख लिए अगले 5 महीने में, 5 महीने में 5 एसे, you'll be ahead of 90% of the people. People don't write. Just writing is a competitive advantage, and you will understand. क्योंकि essay is one place where your parents and your friends, मतलब दे आर ग्रेट ग्रेट इवैल्यूएटर्स. क्योंकि अगर इनको आपने जो लिखा है नहीं समझ आ रहा, कि या तो सर के ऊपर से चला गया, या दे आर सेइंग कि यार मतलब दिस इज नॉट हिटिंग द टॉपिक, देन यू नो राइट देन एंड देयर कि देयर इज सम इंप्रूवमेंट नीडेड हियर, राइट? पीपल फील कि भाई जीएस के आंसर्स पेरेंट्स नहीं इवैल्यूएट कर सकते, एंड देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ credence to that argument, because there are technical things that are looked at in that answer कि भाई अच्छा इसके इतने पॉइंट है, यहाँ पे ये है, बनाया है नहीं बनाया है, because it's a competitive exam. Essay on the other hand, if your parents are unable to understand what you have written, nobody will be able to understand what you have written. Similarly, that's the idea कि essay महीने में एक लिखो, but get it evaluated by friends, by parents. If you want us to evaluate, you can check out the mains MFG course, mains focus group 2027. But all that is after you have written. लिखोगे नहीं तो कुछ चेक भी नहीं होगा. So please write. Now, ऑप्शनल में एक सिंपल सा आपका प्रायोरिटी ऑर्डर चलता है. मोस्ट ऑप्शनल्स, पर्टिकुलरली आपके जो सोशल साइंसेज ऑप्शंस रहते हैं, पीएसआईआर, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एनी ऑफ दीज, पेपर 1 इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन पेपर 2. नाउ दिस डज नॉट मीन कि पेपर 2 में नंबर नहीं आते या पेपर 2 कुछ और है. A lot of the theory is covered in paper 1. So I want you to complete paper 1 first. Right? Once you have done paper 1, उसके notes भी बना लो. Paper 2 उसके बाद आप कर सकते हो. Even if you have done these two things or half of this and full this by end of December, mid January, कि भाई रिवीजन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, चलेगा. इसको मैं बाद में कर सकता हूं, बट एटलीस्ट हाफ ऑफ पेपर 2, कंप्लीट पेपर 1, आई हैव टू इंश्योर कि भाई ये हो जाता है मेरा दिसंबर तक. क्योंकि ये अगर हो जाता है तो मेरे को बहुत ज्यादा मेरा स्ट्रेस जो है आफ्टर प्रीलिम्स वाला, वो मैंने पुल फॉरवर्ड कर लिया है. अभी मैंने वो स्ट्रेस ले लिया दिन में 8-10 घंटे काम करके, ताकि भाई उस मोमेंट पे मुझे ऐसा ना लगे कि यार आई हैव टू make notes also now, I have to do answer writing also now, I have to give a test series also now, और फिर ये क्लास भी हो गई, फिर ये भी. उधर स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस है कि पीपल स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली. दे गेट सो स्ट्रेस्ड कि दे स्टार्ट लूजिंग हेयर. इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, बिकॉज इट्स अ चांस, राइट? हर कोई अच्छा मेंस देना चाहता है, और मेंस देने का मौका मिलता है और फिर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, तो इट्स द वर्स्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. सो देयरफॉर bring that stress forward, do this work right now. आंसर राइटिंग में 3 चीजों पे आपको काम करना है. नंबर 1, यू हैव टू हैव द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का एक बहुत सिंपल सा आइडिया है, हैव यू आंसर्ड द क्वेश्चन आस्क्ड. नाउ समबडी इन वन ऑफ द कमेंट्स इन अ शॉर्ट वीडियो दैट आई हैड पोस्टेड सेड कि बेसिक डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तो मीट कर ही लेंगे. नहीं करते हैं लोग. 50% of the people or more are not addressing the basic demand of the question. What are they doing? Let's say even today I was discussing with one of the students ki she was telling me कि she is facing problem with writing an answer for कि भाई how is caste still relevant to understand Indian culture in the modern or 21st century. This was the question. I asked her very basic things कि भाई what are the components of caste and what are the components of culture. She was confused. 1-2 components दोनों तरफ उन्होंने बता दिए, बट उसके ज्यादा नहीं बताया पाया. बट उनको कीवर्ड सारे याद थे कि नहीं देखो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, इसकी वजह से मतलब जॉब्स को आपको ऐसे मिल गया है. आंसर में कुछ कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिख दिए थे,
But when I asked her the core components of those two, topics, she was not giving me a lot of input. So that is the idea. क्लैरिटी आपको तब आएगी स्ट्रक्चर और आप कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन तब एड्रेस कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट पे एकदम समझ है कि भैया ये क्या पूछा गया है. You cannot answer a question about impact of caste on culture if you don't know what caste and culture actually are. And this is something that's true for a lot of people. Caste and culture are two words which are so commonly used that all of us think we understand them. But if I ask you to define caste in your own words, let me know. कास्ट और कल्चर का सिंपल सा डेफिनेशन अपने शब्दों में कमेंट्स में लिख के छोड़ देना एंड यू विल नोटिस. इसमें अब शर्म मानने की कोई बात नहीं है कि मुझे नहीं आता या क्या है, जैसा भी है. You will notice that it's difficult when the concept is so common to actually define it. And that is where the problem comes up. Which is why structure का practice मुझे चाहिए. दूसरा स्टाइल का प्रैक्टिस. स्टाइल का क्या मतलब है? Am I making diagrams? Am I underlining? Am I making boxes? सबका अपना चॉइस होता है. I really hated making boxes because I didn't have the time. Some people really like making boxes. बनाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है. Some people want to make a diagram in every answer. जरूरत है कि नहीं है? नहीं, बनाना है. Again, that is your style. You have to figure out कि भाई आपको कैसे लिखना पसंद है. And the third thing that you have to work on is timing. This is the most important, but this comes last. For the simple reason, जल्दी लिखना, अगर आप घटिया आंसर लिखने की आदत बना लो और उसको जल्दी लिखो तो आप घटिया आंसर ही लिखते रहोगे. You have to focus on writing good answers in your own style, making your diagrams or underlining or whatever sections you are creating, whatever it is that you're doing. Right? Some people write, like Tina Dabi used to write in prose, meaning she did not use points. And now we have people like क्या बोलते हैं, Ayan Jain, who's writing 15 points in a 10 marker. Everybody has their style. So that is the idea. I want you to understand these two things before you work on this. A lot of people get fixated on मेरा paper पूरा complete नहीं हो रहा. I don't care if your paper is getting not getting completed in this phase till December. I can speed up my process if both of these things are clear. अगर ये चीजें क्लियर नहीं है और मैं सिर्फ जल्दी लिखने पे फोकस कर रहा हूं, मैं कचरा भरता रहूंगा पेपर में और उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट गोना गेट मी द मार्क्स. सो प्लीज इंश्योर दीज टू फर्स्ट, देन you come to timing. Which brings us to previous year questions. Now, previous year questions for mains in particular are something that's very, very important. What we'll do is we'll share the mains PYQ sheet with you. Right? इस sheet में आप क्या कर सकते हो? You can, it's an editable sheet. आप इसको copy करोगे तो you will be able to edit this sheet. And what you can do is, I've taken, let's say, a topic कि भाई governance का एक मैंने topic ले लिया, let's say citizens charter. तो citizens charter से related जितने भी question आए हैं पिछले 15-20 साल में, वो आपको सारे एक जगह दिख जाएंगे. And that makes my life a little easier because once you realize कि same themes हैं, कभी कभार अक्रॉस ईयर्स रिपीट होती है, कभी कभार अक्रॉस पेपर्स रिपीट होती है. बिकॉज लेट्स से वी टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ अर्बनाइजेशन, राइट? अर्बन फ्लडिंग, इफ आई टॉक अबाउट इट, इट्स अ डिजास्टर, राइट? इट शुड बी GS3. But there are questions on urban flooding in GS1 where urbanization is a topic also, right? It sometimes GS2 में urban situation से question आ जाते हैं. Why? Because governance से भी related है. बहुत बार similar questions are repeated across the papers also. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने ही हैं. इवन व्हेन यू आर मेकिंग योर नोट्स, इवन व्हेन यू आर स्टार्टिंग, यू हैव टू लुक एट दीस क्वेश्चंस बिकॉज अदरवाइज यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट. नाउ, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स कैसे करना है? नंबर 1, न्यूज़पेपर पढ़ने की डेली हैबिट बना लो. दिस इज नॉन नेगोशिएबल. यू डोंट हैव टू मेक नोट्स, डोंट टेक नोट्स. दिस इज जस्ट फॉर कि भाई आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आदत हो. क्योंकि अब पेपर में प्रॉब्लम क्या होती है, दैट पीपल आर सेइंग पेपर इज टू लेंथी बिकॉज इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड. व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग. मेक दिस हैबिट. डोंट जस्ट लुक एट लेक्चर्स एंड थिंक कि भाई मेरा हो गया. रीडिंग की हैबिट बनाओ. एंड न्यूज़पेपर इज अ ग्रेट सोर्स फॉर दिस. व्हाई? बिकॉज एवरी डे यू आर गेटिंग सम न्यू इंफॉर्मेशन, some new context, some new ideas. If you really like some of these ideas, some notes you can take. Right? Let's say कि भाई फेडरलिज्म पे कोई बढ़िया आर्टिकल आया हुआ है,
मेरे फेडरलिज्म के नोट्स में मैंने एक दो पॉइंट उसके नोट कर लिए, दैट्स अबाउट इट. डोंट मेक notes for every day ka newspaper because that is a waste of time. I've seen so many people do it and never touch those notes again. Instead, don't waste that effort. वो चीज कर लेना मैगजीन से, राइट? तो वो मंथली मैगजीन से कर लेना, वो एक बार ही अपना रिवाइज करेंगे, जितने महीने का होता चलेगा, राइट? मई जून से शुरू कर सकते हो, मई जून से चल के एवरी अदर मंथ जस्ट एक बार इंडेक्स देख लिया करो दोबारा उनका कि भी अच्छा, डू आई रिमेंबर दीज थिंग्स? इफ आई फॉरगेट समथिंग आई विल गो एंड रिव्यू दैट सब्जेक्ट अगेन. दिस इज अ हैबिट दैट यू हैव टू डेवलप, क्योंकि लास्ट में आके ना इतनी भसड़ होती है करंट अफेयर्स को लेके, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक कि यार सर करंट अफेयर्स कैसे, सर करंट अफेयर्स छूट गया, कैसे करें, कहां करें? एंड देन व्हाट आर दे डूइंग? दे आर ओवर डूइंग करंट अफेयर्स इन जनवरी टू मई. इतना भी करंट अफेयर्स नहीं करना है. बेसिक्स आर स्टिल इंपॉर्टेंट. द कोर कॉन्सेप्ट्स, द कोर सब्जेक्ट्स अगर वो आपके नहीं करे हुए हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स इज नॉट गोना हेल्प यू टेक द पेपर टू completion. But current affairs is also an important aspect of it. So therefore, if I have a habit, डेली बेसिस पे आधा एक घंटा मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, वीकली बेसिस पे मैं मैगजीन देख ले रहा हूँ एक बार, आई विल बी एबल टू मैनेज इट वेरी वेल. बट अगर मैं भसड़ में करूंगा ना लास्ट में, तो फिर वो पूरा एक महीना मैं करंट अफेयर्स करता रहूंगा. डोंट डू दैट, राइट? नाउ which brings us to the October diagnostic for CSAT. नाउ CSAT में एक बहुत सिंपल सी चीज मुझे करनी है, दैट आई वांट टू टेक CSAT 2024 का पेपर, actual paper of this year. If you gave this year का paper, choose a different one, that doesn't matter. But any which way, अगर दिया भी था तब भी भूल चुके होगे कब क्या था. ये पूरा पेपर 31 अक्टूबर को अपना बैठ के 2 घंटा लगाओ, 2 आवर्स एग्जाम सेटिंग में OMR शीट के साथ भर के दो, राइट? इसकी आंसर की भी आ चुकी है, इसका सब कुछ आ चुका है. अब होगा क्या? डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू हैव स्कोर्ड in this CSAT 2024 का पेपर, if you scored below 50, I want you to start CSAT preparation in November itself, right? It's as simple as that. ये नहीं करना है मेरे मन की कि भाई CSAT तो बाद में कर लेंगे, नहीं. डेटा के हिसाब से हम चलेंगे. अगर मेरे CSAT में नंबर नहीं आ रहे, 2024 was not a very hard, not a very easy paper in any given year, so it was an average CSAT paper, right? तो एवरेज सीसैट पेपर में अगर मेरे 50 नंबर भी नहीं बन रहे, तो यू विल स्टार्ट योर सीसैट प्रेप इन नवंबर इटसेल्फ. इफ यू स्कोरिंग बिटवीन 50 and 70, राइट, तो यू स्टार्ट इन जनवरी, इट विल बी फाइन. नाउ देयर विल बी some smart people in the comments will be writing कि सर मेरे 50.5 आए थे, should I be here or here? You take that call by yourself. If even getting 50.5 was a struggle for you, probably you want to start in November itself, right? And if you were getting 70.5 and that was pretty easy for you, okay, or you were getting 69 but that was pretty easy, you go here, that is still fine. थोड़ा एक अपना ये जजमेंट कॉल आप ले सकते हो, बट दैट्स द कोर आइडिया कि 70 to 100 अगर आप स्कोर कर रहे हो 2024 में, आप मार्च में भी चालू करोगे. बिकॉज राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग कि भाई अभी नहीं दिया है सीसैट की, कोई तैयारी नहीं है, एंड देन इफ ऑन 31st of October मेरे लेट्स से 75 मार्क्स आ रहे हैं, विच इज अ पासिंग ग्रेड इन सीसैट, तो डजंट मीन आई गेट ओवर कॉन्फिडेंट. आई स्टिल पुट इन सम एफर्ट इन सीसैट, बट मेरे को इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है जितना इस इंसान को जरूरत है, राइट? एंड इफ यू स्कोरिंग 100 प्लस, तो देन आई एम गोइंग टू लीव इट टू यू कि भी देन लास्ट के महीने में आपको करना है आप करो, आपको मॉक पेपर लगाते रहना, बीच में लगाते रहो. बिकॉज इफ यू स्कोरिंग 100 प्लस इन सीसैट, आई डोंट थिंक सीसैट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू एंड यू कैन मैनेज इट ऑन योर ओन. इधर दो कैटेगरीज में अगर आप हो, तो देर इज अ क्लियर आइडिया. इधर हो नवंबर, इधर हो जनवरी, यू हैव टू पुट इन द एफर्ट फॉर सीसैट ऑल्सो. क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है दैट दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन जीएस, इन ऑप्शनल, इन एवरीवेयर, आंसर राइटिंग कर ली, बढ़िया आंसर लिख रहे हैं. दीज आर जेन्युइनली टैलेंटेड स्टूडेंट्स दैट आई सी, एंड देन स्कोरिंग 64 इन सीसैट, एंड लाइक सर मारने का मन करता है दीवार पे. बट इट इज व्हाट इट इज. Put in the effort as required, right? And this is all, ये सब हमारा हो चुका है before the prelims का intense phase begins, right? That is going to be a very intense phase, क्योंकि then everybody is talking about the exam. एक बारी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है ना और फॉर्म निकल जाता है, तो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं.
अभी क्या है, 3-4 महीने वो भूल जाएंगे, दिवाली पे पूछेंगे आपसे और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, और बेटी पढ़ाई कैसी चल रही है, दैट्स व्हाट दे माइट आस्क, बट उससे पहले उसके आगे पीछे नहीं पूछ रहे. बट वंस द फॉर्म का नोटिफिकेशन कम्स आउट, वंस द एग्जाम प्रोसेस गेट स्टार्टेड, थिंग्स रियली गेट इंटेंस. नॉट जस्ट विद योर पेरेंट्स, ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया. यूट्यूब पे आप देखोगे उस टाइम पे इतना फोमो क्रिएट किया जाता है कि ओह माय गॉड, मतलब ये वीडियो नहीं देखी तो मतलब आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये अटेम्प्ट तो आपका फेल ही फेल है, दुनिया भर की बकवास होगी वहां पे. And that is what you have to keep in mind in the middle of all that. If you can keep yourself calm, और काम कैसे रख पाओगे अपने आप को, you will only be calm if there is a base. अगर आपके नीचे बेस है, it will be easy for you to stay calm. अगर वो बुनियाद ही नहीं है, there is no foundation, तो फिर हर नई वीडियो आएगी और आप हिल जाओगे कि भैया नहीं, यही वीडियो है जो असली सत्य मुझे बता रही है और इसके बिना मेरा पेपर नहीं निकलेगा. अगर फाउंडेशन नहीं है तो पेपर वैसे नहीं निकलना था, बट वो फोमो के चक्कर में और दिमाग खराब हो जाएगा. तो अवॉइड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज इट इज एन इंटेंस फेज, बिकॉज एवरीबडी गेट्स इनटू अ डिफरेंट गियर. तो उस गियर से पहले मुझे काफी कुछ अपना काम करके रख लेना है. इसके साथ साथ ये दो चीजें अपनी बेसिक सॉर्ट कर लो. नंबर 1, योर स्लीप साइकिल. इफ यूर अ मॉर्निंग बर्ड, नाइट आउल, मतलब जो भी आपका क्रोनोटाइप है, वट एवर इट इज, आइडेंटिफाई इट. एंड अपने मोस्ट प्रोडक्टिव स्टडी स्लॉट को आइडेंटिफाई कर लो. आर यू मोस्ट प्रोडक्टिव फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आर यू मोस्ट प्रोडक्टिव इन द आफ्टरनून्स, इन द इवनिंग्स, कब हो. मैं नहीं कह रहा कि एवरीबडी हैज टू बी प्रोडक्टिव इन द मॉर्निंग. whenever you are productive, tackle your hardest subject then. Be aware of these things. Sleep cycle अभी से मेंटेन करके चलो ताकि बाद में इसका स्ट्रेस ना हो मुझे. बहुत से लोग क्या करते हैं कि अभी के लिए एकदम मतलब झकास स्लीप साइकिल है कि कभी भी सोएंगे, कभी भी उठेंगे, कुछ भी चल रहा है, क्योंकि भाई फ्रीडम है अभी. The people who maintain their discipline during these moments of freedom are the ones who finally are able to achieve their dreams when the stress is high. Why? Because they have prepared, they have that foundation, and that is what is required for you. Finally, breaks lena zaruri hai. Please keep this in mind. You are not a robot. दिवाली के टाइम पे 3-4 दिन की छुट्टी अगर ले रहे हो तो प्लीज डोंट गिल्ट योर सेल्फ अबाउट कि मतलब अरे दिवाली के टाइम में पढ़ाई नहीं कर रहा, मेरा तो प्लान पीछे छूट जाएगा. छूट जाना अगर छूट रहा है, अगर आपने लिखा हुआ है अपने प्लान में दिवाली के दिन पे ये मुझे करना था, तो देन दैट इज योर मिस्टेक एंड यू आर द प्रॉब्लम. यू नीड टू रीफॉर्मुलेट अ प्लान विच गिव्स यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रेक्स. क्योंकि देखो, इंसान को चाहिए होता है ब्रेक. दिवाली पे जब सब जनता चिल कर रही है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, एंजॉय कर रही है, आप अकेले बैठ के मतलब दुखी ही होगे और कुछ नहीं होगे. सो मेक श्योर दैट योर प्लानिंग इंक्लूड्स ब्रेक्स एंड अवॉइड्स बर्नआउट्स. बर्नआउट सिंपल ऐसे ही होता है व्हेन आई एम पुशिंग माई सेल्फ टू हार्ड विदाउट गिविंग माई सेल्फ एनी लीवे. What I used to do when I was preparing was I used to study for 6 days a week, and I had told everybody, my friends, my family, कि देखो संडे को पढ़ाई नहीं होती, तो संडे को whatever I'll do. मतलब मुझे खेलने जाना है, मुझे मूवी देखनी है, whatever it is. But Monday to Saturday, you will find me on my desk 8 a.m. to 8 p.m. Right? That is the idea. So there was a break in my every week, but then around holidays, because obviously family used to come over, घर पे मैं तैयारी कर रहा था, तो भाई उनके बीच में मैं जाके अपना अलग से स्टड बन के नहीं मैं तो कमरा बंद करे पढ़ाई कर रहा हूँ, ये भी नहीं होता है, बिकॉज आई ऑल्सो लाइक एंजॉइंग विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो देयरफॉर टेक दैट टाइम, डोंट बी दैट अननेसेसरी स्टड, एंड करो इसको. तो ये चीजें अगर आप कर लेते हो, बेयर मिनिमम अगर आप ये चेकलिस्ट कंप्लीट कर लेते हो कि ऑप्शनल मैंने कंप्लीट कर लिया है, पेपर 1 के नोट्स बना लिए, GS4 एथिक्स मैंने पूरा कर लिया है, GS के मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स एटलीस्ट आई हैव डन. क्योंकि जो प्रीलिम्स के साथ कॉमन टॉपिक्स हैं वो एनी विच वे आई एम गोना डू फॉर प्रीलिम्स, एंड देन इट विल बी इजियर फॉर मी टू बिल्ड देम अप लेटर ऑन इफ नथिंग एल्स. ये 3 चीजें आपकी डेफिनेटली यहाँ पे डन होनी चाहिए. एंड प्लीज कीप इन माइंड, इनको करते हुए आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है. इफ यू कैन डू दिस इन द नेक्स्ट 5 months, you will have a very solid base, and that is what is required in order to clear this exam. Now, starting from now, you have 5 months. 5 months is a huge amount of time. It's a big amount of time. It is enough time. अगर तमीज से तैयारी करोगे ना, दिन में 8 to 10 hours if you're studying,
आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टडी 12 आवर्स, क्योंकि प्रीलिम्स से पहले 1-2 महीना पहले 12 घंटे भी पढ़ोगे। अभी के लिए इतना भी कर लोगे ना, बहुत है। यूज दीज 5 months वेल एंड यू विल फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट इन जनवरी। इफ ये 5 महीने आपने ढंग से इस्तेमाल कर लिए, जनवरी में आपको थोड़ा चिल लगेगा, एंड द मोमेंटम दैट यू विल बिल्ड फ्रॉम जनवरी टू मे देन विल मेक इट इजियर फॉर यू इन जून, जुलाई, अगस्त। मोमेंटम का गेम है सारा इस पेपर में, क्योंकि मोमेंटम आपका बिल्ड होता है इधर से, इन महीनों से जहां पे स्ट्रेस नहीं है, जहां पे एग्जाम का टेंशन नहीं है। यहां पे अगर आपने मोमेंटम बिल्ड कर लिया ना, तो इट रोल्स थ्रू द पेपर। ऐसे निकलता है पेपर, और एक बारी में निकलता है। नाउ इन ऑल ऑफ दिस, इफ यू नीड एनी सपोर्ट फ्रॉम अस, प्लीज डू लेट अस नो। मेंस एक्सेल का जो कोर्स है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। सारा मटेरियल आपको वहां पे मिल जाएगा मेंस के लिए। दैट्स अ कोर्स दैट वी गेव फ्री ऑफ कॉस्ट टू पीपल गिविंग मेंस दिस ईयर। तो सारा मटेरियल जो है अप टू डेट है मेंस 2026 तक। राइट, पेपर आने के बाद थोड़ा पेपर पेपर और डाल देंगे, और कुछ चीजें उसमें अपडेट कर देंगे हम। आपको अगर हमारे से मेंटरशिप चाहिए, तो यू कैन चेक आउट द मेंस फोकस ग्रुप कोर्स फॉर 2027। दैट इज अ कोर्स व्हिच हैज अनलिमिटेड मेंटरशिप विद पास्ट रैंकर्स, अनलिमिटेड आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन। उसके अलावा क्लासेस फॉर एडवांस सब्जेक्ट्स जो सारे हमारे जीएस के हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दैट कोर्स। फॉर मोर डिटेल्स, you can visit courses.upscprep.com. That's it. All the best.